Assalamu alaikum. Today we are to start chapter 3rd of General Science 8th. It is over biotechnology. In this chapter, we shall study about biotechnology, genetic engineering applications will be discussed, and in this very chapter, certain other things will be there like DNA replication, relationships of genes, DNA and chromosomes will be discussed. After this, formation of DNA, that is regarding related to DNA replication, all these things will be discussed in detail. How scientists introduce genes into bacterium or other organisms, this process will be explained, and using this process, whatever proteins are synthesized, this protein synthesis will also be explained, and genetic modifications will be discussed for the production of biotechnology products for the welfare of human beings. Insulin formation, production of insulin, it will be explained in detail. So these things are there which we are to discuss. At the end, even advantages of this insulin which is prepared genetically, it will also be explained. So first of all, we are to start the introductory things. We shall discuss these things. First of all, it is biotechnology. What is biotechnology? I shall indicate you here these things. What is biotechnology? The spotlight, the things will be now clear to you. Whenever we are using scientific knowledge in the fields like engineering, in medicines, then we name it technology. Whenever it is asked what is technology, you should be knowing that application of scientific knowledge, it is there in the areas of engineering and medicines. And when this technology is used for the benefit of human beings, when we are using this technology and taking benefits from living organisms for mankind, then it is called biotechnology. Mean the use of this technology in living organisms. For what purpose? For the benefit of human beings. Then it is named biotechnology. And different organisms which are used here, they may be plants, maybe animals, they may be even microorganisms. The microorganisms are those which can be seen only with the help of microscope. And for what purpose they are used? They are used for bread making, yogurt, cheese, vinegar, several medicines are manufactured. And these are certain processes: fermentation, tissue culture, genetic engineering. These all are processes and techniques in which we use microorganisms for the welfare of human being, for the production of certain chemicals on industrial level. And in this chapter, we are to study all these principles and techniques which we use in biotechnology. Then after this, applications of biotechnology in various fields like agriculture, environment, health, food production and preservation, they will also be discussed. बेटे तवज्जो से बैठें. मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि चैप्टर 3rd है जनरल साइंस 8th क्लास का, इसमें हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है. इसमें हम डीएनए के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि आप पिछले चैप्टर में भी डिटेल से पढ़ चुके हैं. लेकिन यहाँ पे हम डीएनए की रेप्लिकेशन देखेंगे. टॉपिक के तहत मैं एक्सप्लेन करता हूँ रेप्लिकेशन क्या चीज है. जीन्स, डीएनए और क्रोमोसोम का रिलेशनशिप हमने पहले भी स्टडी किया था, उसको हम दोबारा करेंगे, क्योंकि इसमें हमने ज्यादातर जीन्स को देखना है. जीन्स की एप्लीकेशन होती है
for different purposes in different fields for taking human benefits of mankind from living organisms. स्टार्ट में आपको बताया गया है कि टेक्नोलॉजी क्या होती है. ये बेटे देखें, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन किसकी, नॉलेज की. नॉलेज क्या होता है? ये साइंटिफिक नॉलेज ही ज्यादातर यूज करते हैं हम. कौन से एरियाज में यूज करना है? इन एरियाज में, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिसिन हैं, इन एरियाज में जब हम नॉलेज को यूज करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी. और जब हम इस वो टेक्नोलॉजी जिसमें कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे मुख्तलिफ तरीकों से, किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के की वेलफेयर के लिए, टू बेनिफिट ह्यूमन बींग्स, तो इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. अब ये बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी. तो आपने यही बताना होगा कि इट इज दैट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू हेल्प मैनकाइंड, टू हेल्प टू बेनिफिट ह्यूमन बीइंग्स. इट्स कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. देन माइक्रोऑर्गेनिज्म. हियर एज आई हैव मेंशन्ड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग थिंग्स का यूज करना ह्यूमन बीइंग्स की वेलफेयर के लिए. तो वो लिविंग थिंग्स क्या हो सकती हैं? मैंने आपको बताया पौधे भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बगैर माइक्रोस्कोप के नजर नहीं आ सकते. और ज्यादातर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही इस्तेमाल करते हैं. इनको इस्तेमाल करने के कई एडवांटेजेस हैं. आगे टॉपिक के तहत इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ टू सेव टाइम. अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ यूज करते हैं? ब्रेड बनाने में, योगर्ट बनता है, चीज के अंदर, विनीगर बनाने में, कई मेडिसिन के बनाने में यूज करते हैं. उसके अलावा ये कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे फर्मेंटेशन है, टिश्यू कल्चर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह. ये वो प्रोसेसेस और टेक्निक्स हैं जिनमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं फॉर मेकिंग मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. यानी बहुत सी चीजें इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे हम बनाते हैं. और इसके अलावा रिसर्च वर्क में भी ये प्रोसेसेस इस्तेमाल होते हैं. अब बेटे हमने तवज्जो से बैठना है, सबकी तवज्जो इधर होनी चाहिए, कहीं और इन्वॉल्व नहीं होना. यू कैन डू ओनली वन वर्क एट ए टाइम. सो माइक्रो, ये मैंने आपको प्रोसेसेस एक्सप्लेन करने. फर्मेंटेशन क्या है? रेस्पिरेशन बेटे आप जानते हैं, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है, इसमें एक तो ब्रीदिंग होता है, एक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. ब्रीदिंग के अंदर तो सिर्फ सांस लेने का प्रोसेस है, ऑक्सीजन का इनटेक होता है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें के सेल्स के अंदर जो खुराक पहुंची होती है, उस खुराक की ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन के जरिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और वो जो रेस्पिरेशन है वो दो तरह का होता है. एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जो आम ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, बड़े एनिमल्स और प्लांट्स में होता है, इंसानों के अंदर भी यही प्रोसेस होता है, जो ऑक्सीजन के जरिए होता है. इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है. ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये प्रोसेस होगा और इसके दौरान ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दूसरा प्रोसेस मैंने आपको रेस्पिरेशन का बताया है, एनारोबिक रेस्पिरेशन. उसी एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन कहते हैं. इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, एज ए रिजल्ट ऑफ विच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन यीस्ट और बैक्टीरिया during this fermentation. Along with carbon dioxide, alcohol is also produced. अब इसका यूज कहाँ पे होता है फर्मेंटेशन का? ये बेटे जो बेकरी की प्रोडक्ट्स बनती हैं, बेकरी की प्रोडक्ट्स के बनाने में ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज होता है. इसके दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से जो ब्रेड होती है, इट राइजेस, वो राइज कर जाती है, फ्लफी सी हो जाती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. और उसके अंदर आप देखते हैं कि केविटी सी बनी होती हैं. जब हम उसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, रस हो, केक हो, ये ब्रेड हो, उसमें केविटी सी होती हैं. वो क्यों बनती हैं? तो ये मैंने आपको बताया कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ इसके अल्कोहल भी प्रोड्यूस होता है.
वो जो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तो ब्रेड क्या थी, राइज कर गई थी, डो राइज कर जाता है। और उसके बाद जो उसके अंदर अल्कोहल बना होता है, बेकिंग के दौरान अल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है, खारिज हो जाता है। तो ब्रेड के अंदर जहां जहां अल्कोहल होता है वो जगह खाली हो जाती हैं। यही वजह है कि वहां पे केविटीज बन जाती हैं। ये मैंने आपको फर्मेंटेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन किया। उसके बाद है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के अंदर बेटे ये होता है कि हम सेल्स को, टिश्यूज को, या इवन ऑर्गन्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स के, इनको ट्रांसफर करते हैं वो आर्टिफिशियल फूड मीडिया। आर्टिफिशियल फूड मीडिया के अंदर हम उनको ट्रांसफर करते हैं। वहां पे ये सेल्स हो, टिश्यूज या इवन ऑर्गन्स हैं, दे कैन सर्वाइव सक्सेसफुली। Now, for what purpose they are transferred there? There are different purposes. For example, commercial production of plants is there. बिल्कुल identical copies जो हैं plants की produce होती हैं. For example, for potting purposes, ये गमलों में लगाने के लिए जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो टिश्यू कल्चर से बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल आइडेंटिकल एक जैसे ही होंगे वो सारे पौधे। इसके अलावा रिसर्च वर्क में इसको हम यूज करते हैं। बस टिश्यू हमने कल्चर किया, हमें सेल कल्चर किया, हम डिफरेंट ड्रग्स का इफेक्ट देखते हैं, एंटीबायोटिक्स का देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है, बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो कैसे इफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनके सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को। वायरसेस का जो है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि वायरस कैसे अटैक करता है, हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेडिसिनल जो रिसर्चेस हैं, मेडिकल रिसर्चेस आप कह सकते हैं, तो इनके अंदर जो है ये टिश्यू कल्चर टेक्निक्स यूज होती हैं। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स होती है, जिसमें कि हम जीन्स के अंदर जो वो चेंजेस करते हैं। या तो हम ये करते हैं कि हम डिजायर्ड जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हैं और वो जीन जिस चीज की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता होता है तो न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर वो वही चीज प्रोड्यूस करेगा। जैसे इंसुलिन की प्रोडक्शन हमने करनी है तो ये अगले आगे प्रोसेस में एक्सप्लेन भी करता हूँ। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ मोरूसी बीमारियां चलती हैं, तो हम इन मोरूसी बीमारियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं जीन्स को चेंज करके। तो ये सारे प्रोसेसेस और टेक्निक्स ऐसी हैं जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ज्यादातर यूज करते हैं इन चीजों को इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस करने के लिए और रिसर्च वर्क में। तो इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें जो हैं हमने डिस्कस करनी है। नाउ वी मूव नेक्स्ट एंड वी शैल डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेशनशिप आपको बताया जा रहा है क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन्स के अंदर। इस रिलेशनशिप के अंदर आप देखें, जीन को चूंकि मेनली इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग को हमने डिस्कस करना है, तो जीन्स का क्या रिलेशनशिप है डीएनए के साथ या क्रोमोसोम्स के साथ, तो आपको पहले से बताया जा चुका है। ये स्टेप बाय स्टेप आप देखें, 4 पॉइंट्स में आपके यहाँ ये बुक में ही लिखा हुआ है। पहला क्या है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ये क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। डीएनए क्या है, ये हेरिडिटी मटेरियल है, और जो जीन्स हैं वो क्या हैं, ये सेक्शंस ऑफ डीएनए होते हैं। कहाँ ये होते हैं, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होते हैं। इनका काम क्या है, ये कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हेरिडिटी कैरेक्टर्स मीन जो पिछली नस्ल से आगे ट्रांसफर होती हैं, अगली नस्ल में वो जाहिर होती हैं। अगली नस्ल में जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है उसके ऑर्गन्स की डेवलपमेंट कैसे होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन इन जीन्स में होती है जिनके तहत ये डेवलपमेंट होती है। ह्यूमन सेल्स के अंदर मोर देन 1000 जीन्स का कहा कि ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम लोकेटेड होते हैं। अब देखें कि ह्यूमन सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और आपको कहा गया कि सिंगल क्रोमोसोम यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर तकरीबन 1000 के करीब जो हैं वो जीन्स होते हैं। आपके जिसके जो क्वेश्चंस हैं आप उनको एनालिस्ट करते रहें, साथ ही जो है आप रजिस्टर रखें, कॉपी रखें और नोट करते रहें ताकि आप क्वेश्चन पूछ सकें। टॉपिक को मैं कंप्लीट डिस्कस करके फिर आपको मैं टाइम देता हूं, आप टर्न बाय टर्न क्वेश्चन पूछेंगे। ये आपको रिलेशनशिप बताया गया है जीन्स का, डीएनए का और क्रोमोसोम्स का।
नेक्स्ट हम चलते हैं डीएनए, जिसको आप पीछे अब यहाँ पे देख चुके हैं कि डीएनए जो है वो क्रोमोसोम को बनाता है अलॉन्ग विद प्रोटीन। प्रोटीन का नाम मैंने हिस्टोन बताया था। तो ये डीएनए जो क्रोमोसोम बनाता है, जीन्स इसी डीएनए के सेगमेंट्स हैं, और हमने जीन्स को ही यूज करना है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हमने इन्हीं जीन्स को यूज करना होता है। तो हम ये देखेंगे कि ये जीन्स जो हैं इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है। तो चूंकि जीन्स क्रोमोसोम डीएनए के हिस्से हैं, डीएनए क्रोमोसोम के ऊपर होता है, हमने डीएनए की रेप्लिकेशन देखनी है। रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिका कहते हैं एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की एग्जैक्ट जो कॉपी है उसको रेप्लिका कहा जाता है, और रेप्लिका या कॉपीज प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है ये रेप्लिकेशन कहलाता है। इस रेप्लिका की एग्जांपल मैं आपको यूं देता हूं, जैसा मैंने इसमें सेल डिवीजन के अंदर डुप्लीकेशन का वर्ड भी यूज किया था कि डीएनए की डुप्लीकेशन होती है। वो जो डुप्लीकेशन है वो यही रेप्लिकेशन ही है। इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस से ही डुप्लीकेशन होती है। डुप्लीकेशन में क्या है कि डीएनए अपनी तरह की कॉपीज प्रोड्यूस कर लेता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो कि ये अपनी तरह का मटेरियल बढ़ा देता है। रेप्लिकेशन को मैं थोड़ा सा ये डुप्लीकेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक सर्टन सी कॉमन एग्जांपल के साथ। मसलन आप फोटोस्टेट शॉप पे जाकर किसी भी पेज की कॉपीज करवाएं, तो ये जितनी कॉपीज आ रही हैं इनको हम फोटो कॉपीज तो कहते हैं, लेकिन इनको हम डुप्लीकेट नहीं कहते, इनको हम रेप्लिकास नहीं कहेंगे। ये प्रोसेस जो है ये फोटो कॉपिंग तो हुआ है, इसको हम रेप्लिकेशन नहीं कहेंगे, इसको हम रेप्लिकेशन नहीं कहते प्रोसेस को, ये फोटो कॉपिंग है। अब रेप्लिकेशन क्या है? सिंपल सी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आप के पास एक सनद है, आपके पास एक सनद है, आप उस सनद की फोटो कॉपी की दुकान से, शॉप से कॉपी करवाते हैं, वो और चीज है। लेकिन अगर आपको उसका डुप्लीकेट चाहिए तो डुप्लीकेट आपको फोटो कॉपियर से नहीं मिलता। वो सनद जहां से इशू हुई होती है जिस इदारे से, वहां से उसी तरह का दोबारा बनवाना पड़ता है, वो कहलाता है डुप्लीकेट। आपकी डुप्लीकेट सनद कहलाएगी वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डुप्लीकेशन वो है कि जिस मटेरियल की कोई चीज बनी होती है उसी मटेरियल की उस तरह की और चीज बनाना, ये है रेप्लिकेशन। तो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है और न्यू न्यूक्लियोटाइड्स के साथ डीएनए की कॉपीज बनती हैं, रेप्लिकास बनते हैं। ये प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। और ये प्रोसेस देखें, जैसा सेल डिवीजन में आपने देखा ये इंटरफेस के अंदर होता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये इंटरफेस जो सेल डिवीजन का पहला फेज है, जिसमें कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए, तो ये उसमें होता है। नाउ फर्स्ट स्टेप जो है डीएनए रेप्लिकेशन का वो क्या है? वो है अनवाइंडिंग डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की और सेपरेशन टू स्ट्रैंड्स की फ्रॉम ईच अदर। बिल्कुल इसी तरह से सेपरेशन जैसा दो स्ट्रैंड्स किसी भी ओपन जिपर की जो है वो सेपरेट होती हैं। मसलन आप कोई भी जिप, जैसे जैकेट की जिप ओपन करनी है, शूज की जिप ओपन करनी है आपने, तो आप जब जिप को ओपन करें तो उसकी दो स्ट्रैंड्स अलग-अलग होती जाती हैं। तो डीएनए बिल्कुल इसी तरह से होता है। इसकी भी दो स्ट्रैंड, जो पहले आपको एक्सप्लेन किया गया पिछले चैप्टर में भी, कि उसकी दो स्ट्रैंड्स होती हैं जो शुगर और फास्फेट की बनी होती हैं। और ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में लिंक्ड कैसी होती हैं? इनके न्यूक्लियोटाइड्स की जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं उनके दरमियान लिंकेजेस की वजह से ये आपस में लिंक्ड होती हैं। और लिंकेज के बाद क्या होता है? ये दोनों स्ट्रैंड्स इनकी वाइंडिंग हो जाती है, ट्विस्टिंग हो जाती है अराउंड ईच अदर, और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाती है। अब यहाँ पे जब डीएनए की रेप्लिकेशन होनी है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप जो है वो इसकी अनवाइंडिंग होगी। अनवाइंडिंग होगी, उसके बाद सेपरेशन होगी दोनों स्ट्रैंड्स की। बेटे जैसे मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है आपने फौरन ज्वाइन कर लेना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। अनवाइंडिंग होगी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की। आप नेक्स्ट पेज पे देखें, ये देखें, ये है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। पहला स्टेप क्या हुआ है? अनवाइंडिंग होगी। अब ये स्ट्रेट हो गई है,
दोनों अपराइट्स बिल्कुल सेपरेट हो गई हैं। उसके बाद आप देखें सेपरेशन, अनवाइंडिंग के बाद क्या होना था, सेपरेशन, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गई हैं। ये है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। उसके बाद पहला स्टेप क्या हुआ, अनवाइंडिंग, वाइंडिंग खत्म हो गई, ट्विस्टिंग खत्म हो गई है, स्ट्रैंड्स बिल्कुल सीधी हैं यहाँ पे। अगले स्टेप में क्या है, सेपरेशन, के दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो रही हैं। सेपरेट कैसे होंगी, उनके दरमियान ये जो लिंकेजेस थे, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान लिंकेजेस बने हुए थे, ये ब्रेक हो गए हैं और दोनों स्ट्रैंड्स अलग-अलग हो गई हैं। ये आप देखें फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए जो नेक्स्ट स्टेप में बताया गया है कि ये देखिए ये वो स्ट्रैंड्स हैं जो अलग हो गई थी। अब उसके बाद क्या होगा, हर ओल्ड स्ट्रैंड के साथ ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स उन्होंने शो किए जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये इनके साथ मिलते जाते हैं। आपको पता है कि जब डीएनए की ये रेप्लिकेशन होती है इंटरफेस के दौरान, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो खत्म हो जाती है। अब ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, लिहाजा साइटोप्लाज्म में जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो यहाँ पे जॉइन होना शुरू हो जाते हैं। और याद रखें जो न्यू स्ट्रैंड्स बनते हैं, ये देखें आगे ब्लू कलर से शो की गई न्यू स्ट्रैंड्स, ये डॉटर डीएनए बन रहे हैं और ये न्यू स्ट्रैंड्स हैं, साथ एक एक ओल्ड स्ट्रैंड है। यानी हर डॉटर डीएनए में, ये पेरेंट डीएनए था, ये दो डॉटर डीएनए बन गए हैं जो कि रेप्लिकास कहलाएंगे इस पेरेंट डीएनए के। हर डॉटर डीएनए के अंदर एक ओल्ड स्ट्रैंड है जो कि पेरेंटल स्ट्रैंड कहलाती है, और ये एक न्यू स्ट्रैंड बनी है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनके यहाँ पे जॉइन होने से ये बनी है। और न्यूक्लियोटाइड्स का बेटा याद रखें ये कंप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर ये साइटिडीन न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड का आपको पता है ना उसमें एक नाइट्रोजनस बेस होता है, अगर साइटिडीन है तो यहाँ पे साइटोसिन बेस है, साथ ही इसके शुगर होगी और एक फास्फेट होगा। ये 3 यूनिट मिलकर ही एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अगर ये साइटिडीन था यहाँ पे तो इसके साथ दूसरी साइड पे गवेनोसिन मिलेगा, क्योंकि साइटिडीन और गवेनोसिन आपस में मिलते होते हैं, ये कंप्लीमेंट्री कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के। इसी तरह अगर यहाँ पे एडिनोसिन था न्यूक्लियोटाइड तो उसके साथ कौन सा मिलेगा, थायमिडीन, क्योंकि एडिनोसिन और थायमिडीन आपस में मिल सकते हैं। इसी तरह ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते जाते हैं और न्यू स्ट्रैंड जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस डीएनए का कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हमने इसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है कि जीन्स जो हैं, जो कि सेगमेंट्स ऑफ डीएनए हैं, हम इनको बैक्टीरियम के अंदर इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। जीन्स के अंदर बेटे इंस्ट्रक्शंस होती हैं किस चीज की, टू मेक स्पेसिफिक प्रोटीन्स। कुछ भी प्रोटीन किसी भी किस्म की बनानी हो उसकी इंस्ट्रक्शन जीन्स में होती हैं, और ये प्रोटीन्स ही आगे यूज होती हैं फॉर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल पर्पसेस इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल बॉडी की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स की डेवलपमेंट है, तो वो इन्हीं के जरिए होती है। बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग ये एडवांस टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले तो सिलेक्ट करते हैं। ये बेटे देखिए पहला स्टेप है सिलेक्शन का, किसकी सिलेक्शन, जीन की। दूसरा स्टेप है आइसोलेशन का, कि हम आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं यूजफुल जीन को फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म से हम लेते हैं उसको डोनर कहते हैं, डोनर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम उसको इंसर्ट करते हैं, यानी डाल देते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। यूजुअली इसमें जो है हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फॉरेन जीन आ जाता है वो ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। मतलब बैक्टीरियम के अंदर जब हम एक और जीन डाल देंगे, अपना रिक्वायर्ड जीन डाल देंगे, तो वो बैक्टीरियम ट्रांसजीनिक बैक्टीरियम कहलाएगा। इंसर्टेड जीन क्या करता है, ये डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्रोटीन वगैरह या जिस चीज को उसने कंट्रोल करना है, जिसकी फॉर्मेशन को, उसको बनाएगा ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये प्रोसेस में फिर रिपीट कर देता हूँ, इट इज अ न्यू फॉर यू, कि जीन्स जो होते हैं इनके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस हैं दो डिफरेंट सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन की। साइंटिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले जीन को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंसुलिन की एग्जांपल देता हूँ, आगे हमने डिस्कस भी करना है उसको, कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करवानी है तो हम देखेंगे इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो पैंक्रियास के अंदर बनता है। पैंक्रियास जो है ये स्टोमक के साथ होता है, स्टोमक के साथ ग्लैंड है पैंक्रियास, जो कि जिसके अंदर सेक्रेशंस भी प्रोड्यूस होती हैं, डाइजेस्टिव सेक्रेशंस भी, और इंसुलिन हार्मोन भी बनता है। इंसुलिन हार्मोन जो है ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। अगर इसकी मिकदार कम हो जाती है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब इंसुलिन प्रोडक्शन का हमें पता है कि कंट्रोल करने वाला जो जीन है
वो पैंक्रियास से मिलेगा। तो ये है सिलेक्शन, कि हमने जीन को सिलेक्ट किया कि जीन पैंक्रियास के अंदर मौजूद है। अब आइसोलेशन क्या है, हम वहां से पैंक्रियास के अंदर से, पैंक्रियास के सेल्स में से इस जीन को काटेंगे, जीन को हम वहां से सेपरेट करेंगे, काटेंगे। ये जो कट करना है जीन का, ये है आइसोलेशन। आइसोलेशन, कि हमने जीन को आइसोलेट कर लिया है। जब आइसोलेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया को लेते हैं, बैक्टीरिया के अंदर इस जीन को इंसर्ट कर देते हैं। ये जो प्रोसेस लिखा, इंसर्शन इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म, इसको इंसर्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, वो जो बैक्टीरियम होता है आगे वो डिवाइड होता जाता है। ये हमारा जो जीन होता है ये भी साथ डिवाइड होता जाता है। रिजल्ट क्या होता है कि ये हमारा जीन इंसुलिन प्रोड्यूस करता जाता है। जब ज्यादा मिकदार में इंसुलिन प्रोड्यूस होती है तो हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ये बेटा यहाँ पे बताया गया कि हम ये जो साइंटिस्ट हैं ये बैक्टीरिया को क्यों सिलेक्ट करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इसकी ये कुछ वजूहात हैं जो आपको बताए। सबसे पहली वजह ये है कि जो बैक्टीरिया का सेल होता है ये बहुत ही सिंपल होता है एंड इट इज वेरी इजी टू ग्रो। इसको ग्रो करना, इसको कल्चर करना बहुत आसान होता है, कोई कॉस्ट नहीं आती है इसके ऊपर, ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए इसके लिए, और बहुत ही स्पीडी ग्रोथ भी होती है इसकी, इसलिए हम बैक्टीरिया को सिलेक्ट करते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर ये ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता। इसका जो क्रोमोसोम है वो सिंपल डीएनए पे मुश्तमिल होता है, जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, यानी फ्रीली पाया जाता है, कोई बाहर उसके मेम्ब्रेन नहीं होती। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका जो है वो डीएनए है। इसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए भी होते हैं जिनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये प्लाज्मिड जो सर्कुलर पीसेस आपको शो किए गए ये भी डीएनए के पीसेस हैं। हम इन प्लाज्मिड्स को इजीली बाहर निकाल सकते हैं और निकाल कर आइसोलेट करना लिखा, इजीली हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल से। हम अपनी मर्जी का जीन उनके अंदर अटैच कर सकते हैं। प्लाज्मिड जिसके अंदर फॉरेन जीन आएगा अटैच कर लेंगे उसके अंदर, तो वो मॉडिफाइड कहलाएगा, ट्रांसजीनिक, उसको हम ट्रांसजीनिक डीएनए जो है वो कह देंगे। जिस प्लाज्मिड के अंदर हम जीन डाल देंगे उसको ट्रांसजीनिक डीएनए कहा जाएगा, और ये प्लाज्मिड कैरियर के तौर पे काम करेगा फॉरेन जीन का। फॉरेन जीन वो है जो हमने जीन इंसर्ट किया हुआ है। तो एक और रीजन उन्होंने बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया को यूज करने की, ये कि इसकी स्पीडी रिप्रोडक्शन होती है। बस 20 मिनट के अंदर ये अपनी रिप्रोडक्शन ये डिवाइड हो जाता है, रिप्रोड्यूस कर देता है। एक बैक्टीरिया मसलन आप बना है तो 20 मिनट के अंदर वो ग्रो करके मुकम्मल साइज अटेन कर लेगा और वो डिवाइड होकर न्यू डॉटर बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस कर लेगा। ये 20 मिनट इसका ड्यूरेशन इसलिए लिखा। तो बैक्टीरिया को क्यों यूज करते हैं, आपको जो प्रोसेसेस बताए गए हैं मैं रिपीट कर रहा हूं कि वेरी सिंपल सेल है बैक्टीरिया का। इसमें ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है, क्रोमोसोम इसका सिंपल डीएनए साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करता है। इसके अलावा इसमें एडिशनल डीएनए के सर्कुलर पीसेस होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। हम प्लाज्मिड्स को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, अपने चॉइस का जो भी जीन है उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, फिर दोबारा उसको बैक्टीरिया में इंसर्ट कर लेते हैं, और इस डीएनए, इस प्लाज्मिड को जिसमें फॉरेन जीन हो उसको हम ट्रांसजीनिक डीएनए कहते हैं। और इवन जो कि बैक्टीरिया में जब इंसर्ट कर लेंगे तो वो बैक्टीरियम कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम वो कहलाता है। तो इसके अलावा इसमें मैंने बताया आपको कि इसकी रिप्रोडक्शन बड़ी फास्ट होती है बैक्टीरिया की, इस वजह से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब साइंटिस्ट कैसे इंसर्ट करते हैं जीन को बैक्टीरियम के अंदर, इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो आप देखें कि लिखा है बैक्टीरियल सेल का आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। कि जिस तरह का हमें प्रोडक्ट चाहिए हम उस प्रोडक्ट को कंट्रोल की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला जीन जो है उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जिस्म के किस हिस्से में पाया जा सकता है। उसके बाद हम उस जीन को क्या कहते हैं, आइसोलेशन, यानी उसको आइसोलेट करते हैं, वहां से अलहदा करते हैं। जी बेटे, हम ये स्टडी कर रहे थे कि साइंटिस्ट कैसे इंसर्ट करते हैं जीन्स को बैक्टीरियम के अंदर। ये प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको मैं रिपीट कर देता हूं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना रहे इसमें। जीन को सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है कि हम जीन को आइडेंटिफाई करते हैं।
कौन सा जीन, जिस किस्म का हमें प्रोडक्ट चाहिए हो, हम देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाला जीन जिस्म के किस हिस्से में होता है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम वहां से काटते हैं, ये आइसोलेशन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसे जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस ऑर्गेनिज्म को हमने सिलेक्ट किया होता है इस पर्पस के लिए, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उसे इंसर्ट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, डिजायर्ड जीन होता है, वो उस न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर जिस प्रोडक्ट को भी की फॉर्मेशन को उसने कंट्रोल करना होता है, उस प्रोडक्ट को वो बनाता है। और जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तो हम उसको अलहदा कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ के अंदर स्टेप्स को इंडिकेट कर रहा हूँ। ये पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन का है, ये स्पॉटलाइट से आप देख रहे हैं। दूसरा स्टेप ये आइसोलेशन का हो गया कि हमने जीन को अलहदा कर लिया है। उसके बाद ये डिजायर्ड प्रोटीन को जो है वो जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन जो है डोनर ऑर्गेनिज्म से हमने आइसोलेट कर लिया है। बताया कि इसके लिए हम एंजाइम को यूज करते हैं टू कट द जीन फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म। डोनर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल इंसुलिन की प्रोडक्शन का जीन हमने इंसान के पैंक्रियाज से लेना है, तो वो इंसान जो है वो डोनर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा उसके लिए। तो हम इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वैसे एंजाइम का नाम है, यहाँ आपके यहाँ मेंशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसके जरिए हम उसको कट करते हैं। कट करने के बाद हम उसको, ये कट करना आइसोलेशन था। उसके बाद हम उसको अटैच कर लेते हैं प्लाज्मिड के डीएनए के साथ, जो कि हमने बैक्टीरियम से लिया होता है। यहाँ भी हम जो एंजाइम यूज करते हैं वो होता है इसमें लाइगेज एंजाइम यूज होता है जॉइन करने के लिए, अटैच करने के लिए जीन को, किसके साथ, प्लाज्मिड के डीएनए के साथ। तो प्लाज्मिड के डीएनए के साथ उसको जॉइन करने से पहले हम प्लाज्मिड के अंदर से उसी तरह का सेक्शन काट कर अलहदा करते हैं। ये देखें मेंशन किया कि सेम एंजाइम यूज होता है जो कि डोनर के जीन को कट करने के लिए यूज हुआ था, वही एंजाइम यूज करते हैं हम प्लाज्मिड के डीएनए के अंदर से भी पीस को कट करने के लिए। स्पेसिफिक साइट से जो है एक पीस को कट कर देते हैं, सो दैट क्या हो कि वो जो जीन हमने अलग किया हुआ है वो अटैच किया जा सके, वो वहां पे डीएनए के अंदर, प्लाज्मिड के अंदर अटैच किया जा सके। तो एंजाइम्स के जरिए हमने जीन को काटा भी होता है, फिर बाद में अटैच भी किया होता है। अब जो अटैच्ड जीन होता है, ये डिजायर्ड प्रोटीन, जिस प्रोटीन का भी वो जीन होता है, ये और प्लाज्मिड का डीएनए, ये कलेक्टिवली कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। प्लाज्मिड बेटे वो सर्कुलर डीएनए का पीस था जिसको बैक्टीरियम से लिया था, हमने एंजाइम के जरिए उसमें से एक पीस काट कर अलग कर दिया, और हमने अपनी चॉइस का रिक्वायर्ड प्रोडक्ट या प्रोटीन की प्रोडक्शन का जो जीन था वो भी उसी एंजाइम से काटा हुआ था, वो उस प्लाज्मिड के साथ मिला दिया, अटैच कर दिया। अब ये प्लाज्मिड डीएनए और वो हमारे डिजायर्ड प्रोटीन का जो जीन है, ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आपने ये बताना होगा अटैच्ड जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन एंड द प्लाज्मिड डीएनए इज आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है इसको हम इंसर्ट कर देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं, यानी डाल देते हैं किसमें, बैक इनटू द सेम टाइप ऑफ बैक्टीरियम, जहां से वो प्लाज्मिड हमने आइसोलेट किया होता है जिस टाइप के बैक्टीरिया से, उसी के अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। और बैक्टीरियम जब इस न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टेक करेगा तो उसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम, जीएम बैक्टीरियम, या उसको हम कहते हैं ट्रांसजीनिक बैक्टीरियम। दूसरा नाम उसका क्या है, ट्रांसजीनिक बैक्टीरियम या जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। यहाँ बैक्टीरिया है, हम अगर जनरल कोई भी एनिमल है, ऑर्गेनिज्म, उसके लिए कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म। ये प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमने जीन को किसी भी ऑर्गेनिज्म से लेना कैसे है, डोनर से लेना कैसे है, फिर उसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कैसे करना है। नेक्स्ट प्रोसेस में देखें, वही जीन लेने का और बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट करने का जो प्रोसेस है, इंट्रोड्यूस करना मीन बैक्टीरिया में दाखिल करना, ये एक्सप्लेन किया गया है। ये देखें, ये डोनर ऑर्गेनिज्म था, डोनर का ये सेल है, उसके अंदर देखें ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम किसका बना था, डीएनए और प्रोटीन का।
अब उसके डीएनए का एक सेगमेंट हमने लिया है, ये देखिए जीन कट फ्रॉम डोनर सेल, ये जीन है जो कि हमने उसके क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए उसका पीस है काटा है, ये एंजाइम के जरिए हमने काटा है। इधर साथ ही आप देखें ये बैक्टीरियम था, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है, इसको याद रखना है। बैक्टीरियम सिंगुलर है, प्लूरल टर्म जो है वो बैक्टीरिया होता है। अच्छा, इस बैक्टीरियम के अंदर देखें ये तो उसका डीएनए था जो फ्रीली फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, कोई बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती। उसके बाद ये सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए था जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, हमने इसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद हमने इसको एंजाइम के जरिए देखें कट किया है। ये वाला पीस आप देखें जो ये कटा है बिल्कुल उसी तरह का पीस है जिस तरह का ये हमने डोनर से लिया हुआ है। तो सेम कैसे पैदा हुए पीस ये दोनों, क्योंकि हमने एक ही एंजाइम से दोनों काटे हैं। अब ये जो बाकी हिस्सा है इसका प्लाज्मिड का, इसके अंदर हमने ये वाला जीन देखें अटैच कर दिया है, लाइगेज एंजाइम के जरिए इसको अटैच कर दिया। अब ये पूरा क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी प्लाज्मिड और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड जीन अटैच विद ईच अदर, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। उसके बाद हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करना है, उसी बैक्टीरिया के अंदर देखो इंसर्ट कर दिया है। ये है इंसर्शन या इंट्रोडक्शन जीन की बैक्टीरियम के अंदर। उसके बाद क्या होगा कि बैक्टीरिया का, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 मिनट के अंदर ये ग्रो करके डेवलप करके डिवाइड हो जाता है, तो बहुत तेज डिवाइड होता है। तो ये देखें ऐसे अब दो बैक्टीरिया बन गए, और वो जो ट्रांसजीनिक दूसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखें एग्जैक्ट उसकी कॉपीज इधर भी आ गई एक और एक उधर भी चली गई है। तो ये प्रोसेस चलती है। और भी जो इसमें देख रहे हैं ये भी प्लाज्मिड है, ये वाला जो शो किया हुआ है, क्योंकि एक से ज्यादा होते हैं। अब ये जो प्लाज्मिड और साथ उसके डीएनए जीन हमारे जो चॉइस का है वो भी अटैच है, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ये भी चूंकि हर बैक्टीरियम में जा रहा है, तो ये हमारा जीन जिस चीज की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है वो चीज लाजमी प्रोड्यूस होती जाएगी बैक्टीरिया के अंदर। ये नीचे देखे उन्होंने प्रोडक्ट ही शो किया है, प्रोटीन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया डिवाइड होते जाएंगे और हर बैक्टीरियम के अंदर चूंकि हमारा जीन ट्रांसफर होता जाएगा डिवाइड होकर, तो हमारा जीन हमारे ही प्रोडक्ट को बनाता जाएगा। आगे प्रोटीन सिंथेसिस का देखें जो बताया गया, इसमें क्या है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये जीएम बैक्टीरियम क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम या ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम स्टार्ट्स डिवाइडिंग अप। इस डायग्राम में देख चुके हैं कि ये डिवाइड होता है और बैक्टीरियल कॉलोनी बना देता है। हर बैक्टीरियम जो प्रोड्यूस होता है इस कॉलोनी का, उसमें कॉपी होती है उस जीन की जो कि डिजायर्ड प्रोटीन का होता है, जिसको हमने इंसर्ट किया होता है। ये आप देखें जो न्यू बैक्टीरिया बने उसके अंदर ये दोनों के अंदर ये हमारा जीन जो उसकी कॉपी मौजूद है। व्हेन बैक्टीरियम कॉलोनी कहा कि ग्रो करती है, व्हेन इट ग्रोज तो इट स्टार्ट्स मेकिंग प्रोटीन्स अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ इंसर्टेड जीन। वो जो हमारा जीन इंसर्ट किया होता है उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक प्रोटीन बनना शुरू हो जाती हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जीन्स का क्या यूज होता है, जीन्स वेरियस यूजफुल प्रोटीन्स के जो होते हैं, मसलन इंसुलिन के प्रोडक्शन वाले जीन हैं, मुख्तलिफ एंजाइम बनाने वाले जीन होते हैं, वेरियस मेडिसिन जिनसे आगे बनती हैं, वैक्सीन्स बनती हैं। तो ये जीन्स हम इंसर्ट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर और जो डिजायर्ड प्रोटीन्स हमारी होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया जेनेटिक मॉडिफिकेशंस एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। यही चीजें जो डिस्कस हुई हैं उन्हीं को ही यहाँ पे समराइज किया जाएगा। बताया कि चेंज इन जीन्स जो है ऑफ द ऑर्गेनिज्म बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स को यूज करते हुए, ये कहलाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स के अंदर अगर हम चेंज करते हैं तो ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन है। कैसे चेंज करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के जरिए करते हैं। और चेंज इन जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ये कैसे की जा सकती है, इसके ये 3 तरीके हैं। या तो हम जीन को रिमूव करेंगे, या हम जीन को ऐड करेंगे, या हम जीन को मॉडिफाई करेंगे। रिमूव करना क्या है, कोई ऐसा जीन है जो कि डिसऑर्डर कॉज कर रहा है, किसी बीमारी का सबब बन रहा है, हम उस जीन को कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है कि हम अपनी मर्जी का जीन, जैसा कि अभी हमने बैक्टीरिया में जीन को इंसर्ट किया था, तो ये है एडिशन जीन की। मॉडिफिकेशन जीन्स की क्या होती है, ये जैसा आपने देखा कि हमने प्लाज्मिड के अंदर जीन को ऐड कर दिया था, तो जीन का जो हिस्सा खराब होता है हम उसको सही कर देते हैं, ये है मॉडिफिकेशन जीन्स की। ये मॉडर्न मेथड है जैसे कि जिसके जरिए हम ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं।
क्योंकि बेटे देखें कैरेक्टर्स जीन्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक होते हैं, जीन्स के कंट्रोल में होते हैं। जब हम जीन्स को चेंज कर देंगे तो लाजिम बात है कैरेक्टर भी चेंज हो जाएंगे। कोई जीन जो है उसकी खराबी की वजह से, किसी जीन की वजह से बीमारी है जो कि मोरोसी चल रही है, नस्ल दर नस्ल चल रही है, तो वो बीमारी कंट्रोल हो जाती है। मसलन इन जीन्स को हम पौधों के अंदर कहाँ यूज कर सकते हैं? क्रॉप्स के अंदर यूज करते हैं टू डेवलप रेजिस्टेंस इन प्लांट्स अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि हम जीन्स ये पौधों के अंदर जब इंसर्ट करेंगे तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां पैदा करते हैं पौधों के अंदर, पौधों के ऊपर अटैक करते हैं, तो पौधों के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी, वो बैक्टीरिया या वो जरासीम अटैक ही नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली इंप्रूवमेंट होती है न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ एडिबल प्लांट्स। जो हमारी ये खुराक के तौर पे इस्तेमाल होने वाले पौधे हैं उनकी हम न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन की एक बड़ी एडवांसमेंट है। वो ऑर्गेनिज्म जिसके जीन्स को हम मॉडिफाई करते हैं वो क्या कहलाता है? ये बात हो चुकी पहले, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। अगर बैक्टीरियम है तो बैक्टीरियम कहलाएगा, अगर ऑर्गेनिज्म जनरल कह रहे हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये कहाँ यूज होंगे? ये यूज होते हैं टू प्रिपेयर यूजफुल एंड लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स, मुफीद चीजें बनाने के लिए जो ह्यूमन वेलफेयर की हैं। देखिए आपको बायोटेक्नोलॉजी में कहा ये गया था कि टेक्नोलॉजी का यूज करना फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये जितनी चीजें भी आप देख रहे हैं सारी ह्यूमन वेलफेयर की हैं। इंसुलिन है फॉर एग्जाम्पल, वैक्सीन वगैरह हैं, ये चीजें हम इससे प्रोड्यूस करते हैं। ये आप देखें यहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन उसको एक्सप्लेन किया गया एग्जाम्पल के तौर पे। ये लास्ट थिंग ही होगी, इसके बाद आपको क्वेश्चंस का चांस दिया जाएगा। प्रोडक्शन इंसुलिन की जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम से कैसे होती है आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये जस्ट रिवाइज होना है। देखिए सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन का, बल्कि पहला है आइडेंटिफिकेशन का। हमने इंसुलिन की प्रोडक्शन करवानी है तो इसके लिए हमने ये देखना है कि इसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला जीन कहाँ पे होता है। तो हमें पता चला वो पैंक्रियास के अंदर होता है। उसके बाद हम क्या करें? अब इसने करना क्या होता है, इस इंसुलिन ने क्या करना होता है? ये ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है ब्लड के अंदर। अगर पैंक्रियास जो है वो वर्क नहीं करता तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती रिक्वायर्ड अमाउंट में, तो लेवल जो है ग्लूकोज का ब्लड के अंदर ये राइज हो जाता है। हम कहते हैं शुगर की बीमारी हो गई है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस। अब ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं इन पेशेंट्स को रेगुलर इंजेक्शंस इंसुलिन के जो हैं वो यूज करवाने पड़ते हैं शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। अब पास में क्या होता था, इंसुलिन जो है वो एनिमल्स के पैंक्रियास से एक्सट्रैक्ट की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि पिग जो है, पिग से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट की जाती थी, और ये इंसुलिन जब शुगर के पेशेंट्स को लगाई जाती थी तो उनके अंदर वेरियस एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते थे, एलर्जी हो जाती थी, क्योंकि ये इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन से डिफरेंट थी। नाउअडेज क्या होता है कि नाउअडेज ये इंसुलिन प्रोड्यूस होती है बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के जरिए। इसमें साइंटिस्ट इंसर्ट करते हैं ह्यूमन इंसुलिन को, किसके अंदर? ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन वाला जो जीन है उसको इंसर्ट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, उसको मॉडिफाई करते हैं जेनेटिकली, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं इंसुलिन को। और ये इंसुलिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती है इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बैक्टीरियल कॉलोनी से और इसको आगे पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं। अब इसमें ये जो स्टेप्स हैं बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ये देखें डायग्राम में शो किए गए हैं। ये देखिए हमने पैंक्रियास को सिलेक्ट किया क्योंकि हमें पता है इंसुलिन की प्रोडक्शन का जीन पैंक्रियास में होता है। वहां से देखें ये हमने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल, एक नाम याद रखें, आइलेट्स ऑफ लांगरहन, उन सेल्स को कहते हैं जिनमें इंसुलिन प्रोडक्शन होती है। दोबारा नाम बता रहा हूं, आइलेट्स ऑफ लांगरहन, लांगरहन साइंटिस्ट के नेम पे, आइलेट्स ऑफ लांगरहन। तो उन सेल्स के अंदर ये इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। आपकी बुक में नहीं होगी, जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे ये चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी, लेकिन ये चीजें कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो सकते हैं, आप तवज्जो से सुना करें, उसके बाद इसकी वीडियोस भी देख लिया करें। अच्छा, उसके बाद देखें ये बैक्टीरिया से प्लाज्मिड ले लिया है, यहाँ से देखें एंजाइम के जरिए हमने इस सेल के अंदर से जीन को काटा है, ये जीन काटा है, इसको प्लाज्मिड के कट एंड्स के साथ जो है वो अटैच कर देना है। फिर ये बन गया ट्रांसजीनिक डीएनए,
इस ट्रांसजेनिक डीएनए को इस बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया है। ये बैक्टीरियम जब डिवाइड होगा, न्यू बैक्टीरिया बना रहा है, तो हर बैक्टीरियम के अंदर देखें वो जो कॉपी है हमारे जीन की वो जा रही है और उसने इंसुलिन ही प्रोड्यूस करनी है। ये इंसुलिन जब प्रोड्यूस होती है तो हम इसको बैक्टीरियल कॉलोनी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बेटे यहाँ तक ही हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है बाकी चीजें वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। वैक्सीन वगैरह एप्लीकेशंस इसके एग्रीकल्चर में वो अगले लेक्चर में होंगी। तो अभी आपको मैं क्वेश्चंस का चांस दे रहा हूं। यू आर टू रेज योर हैंड्स एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस। Whatever questions you have, turn by turn, I shall give you chance. जी बेटे, you get ready now for your questions. मैंने आपको ये कहा था कि आपने जो है वो लिस्ट कर लेने हैं क्वेश्चंस ताकि इजीली पूछ सकें। अभी तक तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो सिर्फ मुझे 2 हाथ ही नजर आ रहे हैं। बेटे, here you have raised your hands, whatever questions you are to ask. I am starting from the first student. जी बेटे। सर मैंने आपसे पूछना था जी कि सर जब आपने बताया कि हमारा प्लाज्मिड कट होता है जी, प्लाज्मिड हमारा नहीं होता, सर वैसे बैक्टीरियम का होता है। तो सर जो डोनर जीन है उसके अंदर से भी कट होता है जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। सर हम कैसे ये शो किस तरह है हमें कि वो इसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट सेम साइज है जिसके साथ वो अटैच तो सही वर्क करेगा? जी बिल्कुल ठीक, वेरी एक्यूरेट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया जैसा कि ये जो कटिंग का प्रोसेस है इसको हम किसके जरिए करते हैं? जीन्स के जरिए करते हैं, सॉरी एंजाइम्स के जरिए करते हैं। स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो इस पर्पस के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एंजाइम का नाम बताया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सेम एंजाइम जो है उसके साथ हम डोनर के सेल में से भी जीन काटते हैं और उधर प्लाज्मिड जो है उसका भी हिस्सा काटते हैं ताकि बिल्कुल वो एक जैसे स्टिकी एंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हों और वो उसके साथ इजीली अटैच कर सकें। जी बेटे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर एंजाइम तो डिसॉल्व करने के लिए नहीं होता? एंजाइम डिसॉल्व नहीं कर देता है? बेटे एंजाइम्स के मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं। एंजाइम आप जो देख रहे हैं कि वो डाइजेस्टिव पर्पस के लिए यूज होता है, तो डाइजेशन को जब एंजाइम डाइजेशन करते हैं तो आपको पता है कि वो क्या करते हैं कि मसलन प्रोटीन है तो उसको किस में चेंज कर देते हैं? अमीनो एसिड्स के अंदर चेंज कर देते हैं। जो वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो ग्लूकोज बन जाता है। तो ये सिंपल यूनिट बन रहे हैं ना, जिस तरह ये सिंपल यूनिट बन रहे हैं वो एंजाइम भी बिल्कुल ऐसे ही है। वहां से देखें डीएनए के पीसेस काट रहे हैं, वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स की कुछ सीक्वेंसेस हैं जो कि कट रही हैं और वो जीन्स हैं। आप देखो जब अगर हमने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना हो तो हम क्या यूज करेंगे? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम यूज करेंगे ना वहां पे। अब वहां पे अगर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम यूज कर लेंगे तो प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है, वहां प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम काम नहीं करेगा। तो हम एंजाइम भी जो है रिक्वायर्ड एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम ही सिलेक्ट करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि जो हमारा जो डीएनए फॉर्मेशन होती है डॉटर डीएनए की, सर उसके अंदर जो न्यू स्ट्रैंड होती है सर उसके अंदर भी ग्वानिन जी जी जो न्यू स्ट्रैंड बनती है उसके अंदर भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जो ओल्ड स्ट्रैंड होती है ये आपको स्ट्रैंड्स में शो कर रहा हूं। ये देखें यहाँ पे ये अनवाइंडिंग हुई थी, उसके बाद सेपरेशन होती है। ये न्यू स्ट्रैंड, ये वाली स्ट्रैंड जो बनी है ये ओल्ड स्ट्रैंड्स हैं। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये सारी क्या हैं? ओल्ड स्ट्रैंड्स हैं। अब इन ओल्ड स्ट्रैंड्स के अंदर जिस तरह के ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये वाले, इनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इनके साथ अटैच होने हैं। इसी तरह ये इधर वाली जो स्ट्रैंड है इसके साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं? ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड था तो इसके सामने क्या होगा? ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा? थायमिडीन। बेटे याद कर लें ये चीजें। एडिनोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा न्यूक्लियोटाइड आना है? थायमिडीन आना है। और यहाँ पे अगर साइटिडीन न्यूक्लियोटाइड है
तो उसके सामने कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा? guanine। गवेनोसिन न्यूक्लियोटाइड होगा, गवानीन बेस का न्यूक्लियोटाइड, गवेनोसिन न्यूक्लियोटाइड का नाम है। और हर न्यूक्लियोटाइड के मैंने 3 कंपोनेंट बताए थे, कौन कौन से थे 3 कंपोनेंट? एक नाइट्रोजनस बेस, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर और एक फास्फोरिक एसिड। ये चीजें याद कर लें, ये 3 कंपोनेंट हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर होते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जैसा ये थे ना, बिल्कुल इसी तरह से जो न्यू स्ट्रैंड्स आप यहाँ पे देख रही हैं, अगर यहाँ पे एडेनिन था न्यूक्लियोटाइड, उसके साथ ये न्यू स्ट्रैंड का थाइमिडीन न्यूक्लियोटाइड होगा जो अटैच होगा। यहाँ पे अगर साइटिडीन था तो उसके साथ ये गवेनोसिन का न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ है। तो इससे ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनती हैं। ये सारे न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म में होते हैं, वहां से अटैच होते हैं। जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हम हेल्दी जीन इंसर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल हेल्दी जीन कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसे ही होता है कि कोई जीन जो किसी भी डिसऑर्डर का सबब बन रहा होता है, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी जीन के साथ, और वो जो डिसऑर्डर है वो खत्म हो जाता है, परमानेंटली खत्म हो जाता है, वो अगली नस्ल में ट्रांसफर ही नहीं होगा। थैंक यू सर। ये नेक्स्ट। जी बेटे। सर बेटे पूछें क्वेश्चन। सर जब जी। हम सर जब एंजाइम्स के जरिए ये जब काटा जाता है, क्या कहते हैं जीन को काटा सर, जाता है। जीन को काटा जाता है, तो सर उसमें कोई इफेक्ट भी देता है वो, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के जरिए, मतलब जिस तरह किसी ऑर्गेनिज्म में से काटा जा रहा है तो जी। वो ऑर्गेनिज्म में नहीं इफेक्ट होगी? बेटे देखें, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मसलन पैंक्रियास से हमने सेल काटा है, सेल नहीं काटा, सेल के अंदर से जीन ने का पीस काटा, जीन काटा है, उसके अंदर तो बेशुमार सेल हैं। ठीक है, बेशुमार सेल हैं। आप देखें, हमें जख्म हो जाता है, जब जिस्म को कहीं भी जख्म कट हो जाता है, वहां कितने सेल डैमेज हो जाते हैं हमें अंदाजा ही नहीं, तो और सेल बन जाते हैं। तो किसी एक सेल के डैमेज होने से कुछ नहीं होता, एक सेल के अंदर से कोई जीन का हिस्सा निकाला है उससे कुछ नहीं होता। जी। ओके सर। नेक्स्ट। सर वो आपने एक नाम बताया था सर, आय के करके कुछ था एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम। सर, मेरा ख्याल एंजाइम का नाम ही था। एंजाइम का नाम मैंने 2 बताए हैं। जो काटने के लिए यूज होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, और जो जोड़ने के लिए, अटैच करने के लिए यूज होता है वो लाइगेज होता है, लाइगेज। और सर ये एंजाइम्स पैंक्रियास के अंदर मतलब कैसे जाते हैं? बैक्टीरिया के अंदर। कौन? जी बैक्टीरिया के सर। अंदर कैसे जाते हैं? बैक्टीरिया की कॉलोनी जहां पे हमने उसको कल्चर किया होता है, हम एंजाइम डाल देते हैं, ऑटोमेटिकली जो है एंजाइम उसमें इंसर्ट हो जाता है। नो सर, डोनर सेल के, सॉरी, डोनर सेल के अंदर। डोनर सेल का जो होता है, मैंने आपको टिश्यू कल्चर का बताया ना, टेक्निक जो है टिश्यू कल्चर की। जी तो हम सर। सेल्स को लेते हैं, हम सेल्स को ले लेंगे पैंक्रियास से, तो उसको हम आर्टिफिशियल फूड मीडियम में जो है वो कल्चर करेंगे, वहां पे उसके अंदर हम एंजाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके सर। सर आपके चैनल का नाम क्या है? सिद्दीक समोर लर्निंग हब। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट बेटे। आज बच्चे क्वेश्चन बहुत कम क्यों पूछ रहे हैं? एक स्टूडेंट का मैं वेट कर रहा हूं, मुझे नजर नहीं आ रहा उसका नाम। Student with the name Jannat. She used to ask many questions and many technical questions. She is not appearing today. Any other student today? Raise your hands if you are to ask any question. No question. If you are not to ask any question, then we end this meeting. If you are to ask, you can.
जी बेटे, no one is having any question. It means this topic is clear to you all. Anyhow, but you have to learn it thoroughly. You have to read it, and you are even to watch this video. Once if you watch it, it will be just a revision. First, you have to revise from your book. Secondly, you have to watch this video. And notes of this chapter I have uploaded there on school portal, and I shall just now share in the group even. Side by side, you should go on learning these notes. And tomorrow, you should all be present. We are to complete this chapter. Remaining portion of this chapter will be completed. Even in the start, you can ask questions regarding today's lecture. And then onward, in the coming days, in the remaining 2 days, you will be given a time for question answer session, starting from chapter 1. Chapter 1 and this chapter, second chapter discussion was done. You will again be given even time to discuss. You can enlist questions, as many questions you want to ask. You should prepare a list of questions so that you can easily ask the questions when you are giving even the time. For example, look at this, I am asking questions, you are not having any question. So, okay, Allah Hafiz.